एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि ना लाइफ को एंजॉय करने के मोमेंट्स छोड़ने ही नहीं चाहिए. इवन इफ यू हैव, मतलब मेरा ये फॉर्मूला है कि इवन इफ आई हैव टू ड्रॉप 1 or 2 गोल्स ऑफ माइंड ना, मुझे चलेगा, बट मुझे जीना है लाइफ को. बिकॉज मुझे डेथ बेड पे ये रिग्रेट नहीं करना है, अरे मैंने को वो करना था लेकिन मेरा हो नहीं पाया. मैरिज के पहले वाला पार्ट बताया है. आई नो सो मेनी फीमेल्स जो मैरिज के बाद वाले पार्ट में भी ये इमोशनल अब्यूज होता है, विच इज लाइक नॉट कंसिडर्ड एज अब्यूज ओनली, जैसे आपने बताया अभी. दे आर स्ट्रगलिंग इन साइलेंस, उनके पास बोलने के लिए भी नहीं है कि somewhere they are going through this pain. But when it comes to women, women somewhere feel very ashamed to say that I'm single in my 30s, I'm single. Especially Indian women, they feel that something is wrong with them. But the best way to give an answer to such questions is tell them the reality. कि हाँ अभी तक हम सिंगल है, but I'm open for marriage. Because मेरे केस में I am open for marriage. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आजीवन प्रतिज्ञा ली है कि मैं सिंगल ही रहने वाली हूँ. अगर मुझे ऐसा कोई अच्छा कंपेनियन मिला तो मैं जरूर सेटल हो जाऊंगी. But अभी as of now my marital status is that I'm single. So I tell them in a very relaxed way. So जब मेरा रिस्पॉन्स इतना कॉन्फिडेंटली और रिलैक्स तरीके से आता है तो सामने वाला इंसान का रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है. बट द पॉइंट इज व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड व्हेन यू आर नॉट जजिंग योरसेल्फ, योर रिस्पॉन्सेस विल बी वेरी क्रिस्प एंड कैंडिड. औरतें भी अपना टाइम ले सकती है और मैं तो कहूंगी लेना चाहिए, और फिर शादी करें. तो शादी तब करो जब आप रेडी हो, तब मत करो क्योंकि आप सोसाइटी कह रही है कि आपको करनी चाहिए. सबसे ज्यादा डर और शर्म, डर से भी ज्यादा शर्म इस बात की आ रही थी कि उन्हें जाके बोलना है कि रिश्ता वर्कआउट नहीं हो पाया. दूसरा ये कि आप साइकोलॉजी प्रोफेशन से हो तो आपको तो सारे जीवन के चीजें पता होनी चाहिए, और आपसे रिश्ता वर्कआउट नहीं हुआ तो वो एक प्रेशर जो सोसाइटी ने ऑलरेडी दे रखा था या सोशल सर्कल ने दे रखा था. और सबसे ज्यादा गुस्सा जो आया अपने आप पे कि आपने यहाँ पे अपना टाइम और इमोशंस वेस्ट किए इन लोगों के लिए और इन लोगों के साथ, जहाँ पे आप अपने आप को ही भूल गए. उनके कल्चर में अडेप्ट होते होते आप अपने आप को ही भूला. आपको उस पार्टनरशिप में इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं. और अगर आपको उस इक्वल ट्रीटमेंट की जरूरत है और शादी करने से पहले अगर आप उसकी मांग करते हैं या शादी के बाद भी अगर आप उसकी मांग करते हैं तो कोई गलती नहीं करते हैं. एग्जैक्टली, ये हक है आपका, एग्जैक्टली, जो आपको मिलना चाहिए. It took me time and there was a lot of work that went in. It didn't happen overnight, I'll be very honest. But then I was able to rise like a phoenix. So अगर आप ये कह रहे हो कि I will not give myself time, good, don't give yourself time. Then your body will give you a disease. Your mind will give you a stress. So if you're ready for all of that, then don't give yourself time. Hey guys, welcome back to my channel. Today we have another fabulous guest, Neha Lunari. She is a clinical psychologist, life skills coach, corporate trainer, and L&D consultant from past 14 years. I have met her in one of the coaching sessions of NLP Masters, and I found her very inspirational, and she is here to share her story, her journey, and you will be like delighted to know, wow, how can someone do this and what inspires her to do this. So let's check it out from her own self. So welcome Neha, welcome to my channel. I'm glad that you accepted my interview request and came up here to share your stories and inspire many out there. Thank you, Anita. I think it is an honor, firstly, to be here, and I'm so looking forward to this interaction. And thank you so much for inviting me. Thank you. Awesome. So, can you just brief us about your journey till date? What all happened? What all are you doing, and how all it went? Wow, what an interesting question. I have to really, go back in time and map my journey. Well, my journey began as a very curious and a creative child. Blessed to be born in a family where I got a lot of support from my family, from my parents to really pursue what my calling was.
And I was being taught that just follow your dreams and follow your heart. I think that was the lesson that I got, and I grew up with that lesson. And my career happened in the field of clinical psychology. Somehow, right from the college days, I was so sure that this is one area that I would like to really understand more, and serve in this area itself to the people of this nation and of this globe. And so I became a master's in clinical psychology, so I can call myself a clinical psychologist. And moving further, I decided to start my career in a corporate sector, which was a no match. And earlier, everyone was like, "Really, are you going to start your career in corporate?" And I was like, beating the odds is something that I have learned from my family, and it's in me. So I'm going to do that. And with God's grace, my career started in corporate, where I was an academic trainer for a particular product. And from training, I made my move to sales. And then I drove sales for a few years. And from there, I was being a curious person, as right from the childhood that I was a curious child. I always wanted to learn more. And if something gets monotonous, then I had to break the pattern and to learn something even more. And that curiosity kept me going, and I decided to specialize in psychotherapy. And I selected one therapy, that is REBT, rational emotive behavior therapy. And I decided to be more connected with my roots. Like, my roots were always psychology, and I will, till the last breath of my life, it will be psychology. So I decided to strengthen my roots even further, and to support people in their journeys. And with that specialization, I joined as a school counselor in Shishuvan school. And then with God's grace, I was blessed with a team, and the management was very supportive of my initiatives. And I was able to drive a lot of initiatives and start my own independent practice as a counselor and a trainer. And with that, I think I served in the education industry for more than 4+ years, working with multiple schools and driving multiple parenting projects for students in the arena of mental health. So that was it. And then came a point when I felt like, abhi kuch aur naya hona chahiye. De ho gaya hai. Now something more, something bigger, something more meaningful. And I felt like now it's the time for me to also explore the L&D space, the learning and development space in the corporate sector. Again, beating all the odds. The journey was not easy. It was very, very challenging. But I think if there are no challenges, there is no growth. So with that, I stepped into the field of L&D, and it has been 6 years as we speak today that I'm in the field of L&D as a corporate trainer, as a content developer, as a coach. So that's about me. Awesome, awesome. So the way you have narrated everything, it sounds that your journey has been very smooth. Is it so? कि Yeah, मतलब yeah. सब कुछ एकदम beautiful beautiful हुआ है, rosy rosy हुआ है. There were no challenges in your life, and it was like success after success after success. Is it so? काश ऐसे होता, काश, पर ऐसा था नहीं. I mean, maybe when you think of your journey, you always think of the high points, but the high points are only there when there are low points. Awesome. So Wow. काफी सारे low points रह चुके हैं लाइफ में, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी. So yeah. Okay. So whenever you face such challenges, how do you plan to come out of them? कैसे आप first of all, did you like आपने बोला कि कुछ challenges आपने face किए हैं, so would you like to share to inspire others कि okay, I faced this challenge and I overcome it this way? Would you like to share? So life, yes, was going really well, very smoothly. but ऐसा होता है कि लाइफ हर बार इतनी स्मूथली होती नहीं है. हमारे पास जैसे हाई पॉइंट्स होते हैं, लो पॉइंट्स भी होते हैं. और मैं एक चैलेंज जरूर बताना चाहूंगी आपको और सभी को. वो एक ऐसा पॉइंट था मेरे लाइफ का, सबसे लो पॉइंट था, जिससे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई. अगर वो पॉइंट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ होती भी नहीं आपसे बात करते हुए, और ईशा मैंने शायद इतना सब कुछ अचीव किया भी नहीं होता. तो वो पॉइंट है मेरे रिलेशनशिप को लेके. सो आई वाज इन अ रिलेशनशिप, क्वाइट long term relationship, where my goal was to get married.
और जो मेरे पार्टनर थे और जो मैं थी, वो हमारे कम्युनिटीज अलग थे, हमारे कास्ट अलग थे। हिंदू थे बट हम अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। तो मैं इतना कमिटेड थी अपने रिश्ते को लेकर, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि आपको शादी करनी है, शादी करना ही आपका सबसे अल्टीमेट गोल है। तो मैं इतना कमिटेड थी उस चीज को लेके कि मुझे तो भाई शादी करनी है। यहाँ मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, मैं लाखों के इंसेंटिव्स कमा रही हूँ, मेरे लिए वो मैटर नहीं कर रहा था। मेरे लिए मैटर ये कर रहा था कि मुझे काली दाल बनानी आती है या नहीं। और उसके लिए करियर हो रहा था अच्छा, और आगे भी प्रमोशंस के ऑफर आ रहे थे। बट क्योंकि मुझे शादी करनी थी और मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था उस फैमिली को, कि मुझे इनके साथ ही रहना है, मुझे इनके रहन सहन में अपने आप को ढलना है, और उन्हीं के सारे कल्चर और कस्टम्स को अडेप्ट करना है। तो मैं काफी कमिटेड वहां पे रही। तो ऑफ कोर्स करियर पे उतना ध्यान था, बट मैंने कभी वैल्यू नहीं किया। मैं नहीं कहूंगी कि मैंने करियर पे परफॉर्म अच्छा नहीं किया, आई वाज अ टॉप परफॉर्मर, बट कहीं ना कहीं अंदर से मैं उसे वैल्यू नहीं कर रही थी। और जब एक पॉइंट है कि मैंने कहा कि नहीं, अब तो शादी करनी है, क्योंकि घर वाले भी पूछ रहे थे, मैंने जॉब को साइड में रख दिया और मैंने अपने पार्टनर को फिर फाइनली कन्फ्रंट किया कि अब तो हम करेंगे ना शादी, बिकॉज हम कब से प्लान कर रहे हैं। एंड फिर वहां से पता चला कि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि हमारा रिश्ता हो। बिकॉज ऑफ और द डिफरेंसेस, राइट? मल्टीपल रीजंस, बट मेनली डिफरेंसेस भी अलग कास्ट से थे। और मेरे पार्टनर भी इतने श्योर नहीं थे, मेरे एक्स पार्टनर भी इतने श्योर नहीं थे, वो खुद भी कमिट नहीं होना चाह रहे थे। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मुझे उस बात का इतना सदमा लगा कि ऐसे कैसे, मतलब इस रिश्ते के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना भरोसा, सब कुछ। और ऐसे टाइम पे जहां मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, साथ में रहकर इस बैटल को लड़ने की, अब तो विड्रॉ कर लिए। तो व्हाट डू आई डू नाउ? सो एक तो मुझे फेस करना था मेरी फैमिली को, because I had to tell them कि it is not going to work out now, because they were also not happy, but they were like ठीक है, बेटी की खुशी है तो कर लेंगे हम, करवा देंगे ये शादी, which is fine. So I had to go and tell them. तो सबसे ज्यादा डर और शर्म, डर से भी ज्यादा शर्म इस बात की आ रही थी कि उन्हें जाके बोलना है कि रिश्ता वर्कआउट नहीं हो पाया। दूसरा ये कि आप साइकोलॉजी प्रोफेशन से हो, तो आपको तो सारे जीवन के चीजें पता होनी चाहिए, और आपसे रिश्ता वर्कआउट नहीं हुआ तो वो एक प्रेशर जो सोसाइटी ने ऑलरेडी दे रखा था या सोशल सर्कल ने दे रखा था। और सबसे ज्यादा गुस्सा जो आया अपने आप पे, कि आपने यहाँ पे अपना टाइम और इमोशंस वेस्ट किए इन लोगों के लिए और इन लोगों के साथ, जहाँ पे आप अपने आप को ही भूल गए। उनके कल्चर में अडेप्ट होते होते आप अपने आप को ही भूल गए। सो आई वॉज ग्रैपलिंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, एंगर, गिल्ट, एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ रिवेंज, कि भाई ये क्या है, मतलब क्या भगवान ने मुझे दे दिया है, मैंने तो इतना अच्छा किया है, किसी का बुरा कभी नहीं किया, और क्या मांग लिया मैंने, एक छोटी सी तो चीज मांगी जो हर एक हिंदुस्तानी लड़की मांगेगी, यार एक हिंदुस्तानी औरत चाहेगी कि मेरा घर बस जाए। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा डिपिंग पॉइंट था। उसने तोड़ दिया मुझे as a person emotionally. I was broken, and I was really broken, like how. Yeah, now like I can like relate कि साइकोलॉजिस्ट हो ना, फिर ऊपर से लाइक यू आर टॉकिंग कि फैमिली को भी कन्विंस करना था। पहले आपने फैमिली को कन्विंस किया होगा कि मुझे करनी है शादी, इन दैट बिल्कुल इंटरकास्ट थिंग, बिल्कुल और अब बिल्कुल। आपको कन्विंस करना है कि नहीं, वर्कआउट नहीं हो रहा है। सो दैट कन्विंस की बात नहीं थी, कॉन्ट्रास्ट। अभी तो उनके आंखों में आंखें डाल के बोलना था कि नहीं हुआ ये वर्कआउट। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं थी कि वर्कआउट नहीं हुआ उस रिश्ते में। जब मैंने कहा कि मैंने काफी सैक्रिफाइसेस किए, तो वो किस तरह के सैक्रिफाइसेस थे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज था दैट आई वॉज अ विक्टिम टू एन इमोशनल अब्यूज। जो हमारे इंडियन कल्चर में या हमारे इंडियन सोसाइटी में लोग ज्यादा इस चीज को समझते नहीं है कि इमोशनल अब्यूज क्या होता है। हाँ, फिजिकल अब्यूज समझ में आता है क्योंकि आपको जख्म दिखते हैं। सेक्सुअल अब्यूज समझ में आता है क्योंकि इट्स अ क्राइम। इमोशनल अब्यूज क्या है? तो मैं थोड़ा टाइम लेकर इसके बारे में बोलना चाहूंगी। इमोशनल अब्यूज मतलब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, आपके अस्तित्व का स्वीकार ही ना करना, या आपको रिस्पेक्ट नहीं करना, आपको ह्यूमिलिएट करना सबके सामने, या आपको इग्नोर करना, जानबूझ के आपको इग्नोर करना। ये टॉर्चर जो होता है, जो मुझे लगता है कि इंडिया की कितनी सारी औरतें ये टॉर्चर सहती है। बस इसके अगेंस्ट हम कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्राइम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके का अब्यूज ही है, एक इमोशनल अब्यूज। तो ये मेरे साथ हो रहा था।
मेरे रिलेशनशिप में मेरे साथ ये हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि ठीक है, मतलब बाकी औरतें भी तो सहती है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जख्म तो नहीं दिख रहे कहीं पे, मार पीट नहीं रहे, तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसमें क्या है, इसको जाने दो, जाने दो, जाने दो। सो मैंने बहुत अरसे तक कई ऐसी चीजें अनदेखी कर ली That's जिनसे, how our conditioning is, right? यस वैसे ही इट इज, होती इट है। इज, इट इज, क्योंकि हमें लगता है कि अरे, हमें हमें 4 घंटा घंटा इंतजार करवा दिया तो कोई बात नहीं, मारा तो नहीं ना, 4 घंटा ही तो इंतजार करवाया, कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो भी एक टॉर्चर है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं और आपको समय नहीं देना, या आपको जानबूझ के इग्नोर करना, या आप बहुत ही रूड तरीके से आपसे बात करना, या हर बात में आपकी गलती निकालना, और हर बात में आपको रूडली कमेंट करना, ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है, दिखने में बड़ी छोटी चीजें होती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अगर वो कंसिस्टेंटली होता रहा तो हम्म ये सब हो रहा था। लेकिन क्योंकि मेरा ड्रीम ये था कि मुझे तो बस शादी करनी है एंड दैट्स इट, इसलिए ये सारी चीजें जो हो रही है उनको मैं अनदेखा कर रही थी उस पॉइंट तक। जब फाइनली ऐसी बात हुई कि अब हम कमिट करेंगे, और तब पता चला कि नहीं, अब हम कमिट नहीं करेंगे, तब मुझे लगा कि क्या क्या कर लिया मैंने, हम्म इसलिए मैंने ये सारे सैक्रिफाइसेस किए, क्यों मैं अब्यूज इतना सह रही थी। तो उस टाइम पे ऐसा कह सकती हैं आप, कि मैं टूट गई थी, और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे एक अवेयरनेस भी आया कि ये सब तो बेकार गया, और ये सारी मेरी गलतियां थी, क्योंकि इस सब में मैंने अपने आप को खो दिया। तो हम्म जब मुझे इसमें सब में से उठकर उभरना था, और जब मैं अपने आप पे काम कर रही थी, और जब मैं वो अपने, कह सकते हैं हम, गैदरिंग द लिटिल पीसेस ऑफ योर हार्ट राइट which are broken, it took time, it हम्म took time। और मैं कहूंगी, मैं एक एग्जांपल यूज करूंगी फिनिक्स बर्ड का, हम्म जो पूरी तरह से जल जाता है और खत्म हो जाता है, फ्रॉम एशेस द बर्ड अगेन राइजेस। सो हम्म आई विल से उस पॉइंट के बाद आई वॉज एबल टू राइज फ्रॉम द एशेस ऑफ माई हार्ट। It took me time, and there was a lot of work that went in. It didn't happen overnight, I'll be very honest. But then I was able to rise like a phoenix. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई फील ये आपने आपने लाइक मैरिज के पहले वाला पार्ट बताया है। आई नो सो मेनी फीमेल्स जो मैरिज के बाद वाले पार्ट में भी ये इमोशनल अब्यूज होता है, विच इज लाइक नॉट कंसिडर्ड एज अब्यूज ओनली, जैसे आपने बताया अभी। दे आर स्ट्रगलिंग इन साइलेंस, उनके पास बोलने के लिए भी नहीं है कि समवेयर दे आर गोइंग थ्रू दिस पेन। एंड आई ट्रूली फील कि वैसे वाले लाइक जो इस टाइप के स्ट्रगल से जा रहे हैं ना, इमोशनल वाला जो अब्यूज, उनको तो सच में खड़ा होना चाहिए अपने लिए। बिकॉज समवेयर इट हैज कम टू टीच देम अ लेसन कि ये जो आपके साथ गलत हो रहा है ना, उसके लाइक इट इज सेड कि मारने वाला मतलब जो सह रहा है वो ज्यादा गुनेगार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। So if you are going through something, then please talk about it. Say it openly, stand up for yourself, don't struggle in silence. वो आपको ना मतलब किस लेवल तक नीचे गिरा सकता है ना, लाइक यू से कि यू रीच टू द लेवल ऑफ एशेस। जैसे बहुत सारे लोग लाइक समटाइम्स दे गो टू द पॉइंट कि वो सुसाइड कमिट करने के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। But why to reach that level? God या has made you such a beautiful human being. You have so much of potential inside you. उस बारे में सोचो ना, उस बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, तो यू विल। कई बार क्या हो जाता है अनीता जी, हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो टॉर्चर इतना ज्यादा हो जाता है, जिस तरह से जजमेंट्स आपके ऊपर किए जाते हैं कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, यू आर जस्ट दिस, यू ओनली वांट टू मेक योर करियर, व्हाट काइंड ऑफ वुमन यू आर, यू डोंट वांट टू पे अटेंशन टू योर हाउस, यू डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ वुमन आर यू। तो जो सारे कमेंट्स कर जाते हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान, हम औरतें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हमारी सच्चाई बना लेते हैं, और हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं। लेकिन जिस वक्त आप अपने पावर में टैप इन करोगे, तब आप अपने अंदर ही दुर्गा पाओगे। कि या हम पहले स्ट्रांग बन जाए। इफ वी आर स्ट्रॉन्गर फ्रॉम इनसाइड ना, तो फिर तो दुनिया आके कुछ भी बोल दे, आई नो नथिंग मैटर्स। वो आप हो, करेक्ट, मैं हो, या कोई भी करेक्ट, लेडी हो, करेक्ट, कि करेक्ट। अगर हम अंदर से स्ट्रांग है ना, तो कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, वी विल बी लाइक
तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है ये ट्रूथ. और दूसरी एक बात अनीता, आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज कि आपके जो थॉट्स है ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं. तो अगर आप आपके ख्यालों में, यार आप अपने आपके विचारों में, आपके थॉट्स में अगर आप अपने आप को कोस रहे हो ना कि अरे हाय मैं सिंगल हूँ, अरे हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको आपके एनवायरनमेंट में दिखेगा. मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपको आकर पूछेंगे कि आप सिंगल क्यों हो, या कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपको कंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो थॉट्स को लेके बैठे हो. Those thoughts are brewing inside you, so your thoughts are very powerful. So if your thoughts are powerful, that what I'm doing is I'm living my purpose, I'm doing what is the true calling for me, and I know what I really want in my life, and that's about it. So when you have that kind of thought, a very confident thought, it will be projected outside. You will emit those kind of energy. So today when people, not firstly, many people come and even ask me this question. That is one. But even if they do, the kind of response that they get from me, they just feel, oh, it's a normal situation that she is not married. अंदर से पहले उसको normalize कर लो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है. It is just a choice that has been made. और आगे चल के ये choice बदल भी सकती है. You can get married also if you want to. ये choice की बात है, pressure की नहीं. So नेहा, it would have happened like आपके साथ, like जब ये सब हो रहा था या फिर अभी भी, because you have chosen to be single, कोई तो आके आपको पूछता ही होगा, राइट, कि क्या बोलते हैं, व्हाई डोंट यू गेट मैरिड, अब टाइम हो गया है, एज हो गई है, देयर इज अ टाइम टू सेटल डाउन. देन हाउ डू यू हैंडल सच क्वेश्चंस, क्योंकि दैट प्रेशर कि जो हम, मतलब जो हम चूज कर रहे हैं, लेकिन हमें सोसाइटी कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज करती है कि नहीं, एक सेटल होना इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो कर लो, लाइक दैट शुड बी डन एंड डस्टेड. तो हाउ डू यू हैंडल दैट? So सबसे पहले तो मैं रेडी होती हूँ कि ये सवाल आने वाले हैं, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी का कंडीशनिंग ये है कि सेटल होने का डेफिनेशन मतलब मैरिज एंड हैविंग किड्स. पर ये सोसाइटी का डेफिनेशन है, या आपका डेफिनेशन होना जरूरी नहीं है. सो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को बोल के रखा है कि अभी तक तो तुम इंडिया में रहती हो, तो तुम्हें ये सवाल आने वाले हैं. सो आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस इफ आई एम मीटिंग समवन for the very first time, or if I'm going to a function or something like that, मुझे मालूम है कि यहाँ पे ये सवाल आएंगे, तो आपको पहले तो रेडी होना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये सवाल अब मुझे परेशान नहीं करते या मुझे गुस्सा नहीं दिलाते. पहले बहुत दिलाते थे. पहले मुझे लगता था कि अरे इनको क्या करना है, why are they interfering, why can't they just stick to their own business and all of that. मुझे लगता है कि ठीक है, अभी ये उनका पूछना है, वो पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. जवाब देना या नहीं देना मेरे कंट्रोल में है, और गुस्सा होना या ना होना भी मेरे कंट्रोल में है. तो मैं ऐसे सारे सवालों को काफी अच्छे से हैंडल करती हूँ. सबसे पहले यहाँ से भी देखना जरूरी है कि कौन पूछ रहा है, और कहाँ पूछ रहा है, और किस तरीके से पूछा जा रहा है. अगर कोई जन बड़े टॉन्ट वे में पूछ रहे कि अरे अब तक हुई नहीं, कर क्या रही हो तुम, या कोई बहुत ही जेन्युइनली कंसर्न से पूछ रहा है कि क्या हुआ, कैन वी हेल्प इन सम वे, और सम पीपल आर लाइक दे आर जस्ट पजल्ड एंड दे जस्ट वांट टू आस्क. सो आप पहले देखो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ से सवाल आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना जवाब रेडी रखो. बट द बेस्ट वे टू गिव एन आंसर टू सच क्वेश्चंस इज टेल देम द रियलिटी कि हाँ अभी तक हम सिंगल है, बट आई एम ओपन फॉर मैरिज. बिकॉज मेरे केस में आई एम ओपन फॉर मैरिज. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आजीवन प्रतिज्ञा ली है कि मैं सिंगल ही रहने वाली हूँ. अगर मुझे ऐसा कोई अच्छा कंपेनियन मिला तो मैं जरूर सेटल हो जाऊंगी. But abhi, as of now, my marital status is that I'm single. So I tell them in a very relaxed way. So जब मेरा response इतना confidently और relaxed तरीके से आता है, तो सामने वाला इंसान का response भी change हो जाता है. Right. So It is that is one of basically the, staying in yeah. our power. Stay in your power and don't judge yourself. हाँ. Don't judge yourself for these questions. See, I am a working woman. So मुझे कई बार कई conferences में जाना होता है, travel करना होता है. हाल ही में मैं किसी शहर में गई थी, एक साउथ में कहीं पे मैं गई थी, फॉर माय वर्क मीटिंग, और वहां पे लॉबी में ही मैं थी, कुछ साइन कर रही थी डॉक्यूमेंट्स. वहां पे एक और लेडी बैठी थी, एंड शी लाइक, सर नहीं है आपके, सर मतलब आपके हस्बैंड नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ रूम देखेंगी. एंड आई जस्ट स्माइल्ड, एंड से नो. So sometimes you don't even have to answer. But the point is when you are ready,
when you're confident and when you're not judging yourself, your responses will be very crisp and candid. And that will really make an impact on the other person. So ये करने से क्या फायदा हुआ है मुझे, और ये मैं अपील करूंगी सारे सिंगल औरतों को जो ये कॉल सुन रही है, कि ये सवाल आना बहुत कम हो गया है. अब मुझे ज्यादा कोई ये सवाल पूछता ही नहीं है. और दूसरा ये है कि जो मेरा ऑरा है, जो मेरे एनर्जीज जो मैं एमिट करती हूँ, वो इतने कॉन्फिडेंस के एनर्जीज है कि ये मेरा चॉइस है. और अभी तक ये मैं चॉइस निभा रही हूँ. और आगे जब मुझे, आई एम ओपन टू मैरिज, यू नो, इफ आई गेट अ कंपेनियन आई गेट मैरिड, बट राइट नाउ आई एम सिंगल एंड आई एम वेरी प्राउडली सिंगल. So I don't have to be ashamed of the fact ki ho, I'm still single. So when you have that aura, and with that aura when you operate, people will not ask you those questions. You're reflecting that aura in your environment. So आपको काफी protection भी मिल जाता है from divine forces. So Wow. that's how I deal with it. Thank you for sharing that. It will help many out there क्योंकि ये क्वेश्चन आना जनरल है. It is like the way how our society operates, and staying in our power and giving a firm answer is so important. Yeah. वरना आप अगर एक बार अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तो people will keep on coming and asking and asking and asking you. और वो अगर आपने अपना रिमोट उनको दे दिया, हाँ करो जैसा ऑपरेट करना है, मैं मतलब वैसे ही चलूंगी, तो फिर यू विल लूज योर काम, यू लूज योर. और कहीं ना कहीं आपको ना, कभी कभी आपको फर्म भी होना पड़ेगा, कभी कभी आपको दुर्गा बनना होगा, कभी कभी आपको काली बनना होगा. कि जस्ट बिकॉज आप सिंगल हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके कोई भी कुछ भी पूछ लेगा. तो आपको वो बाउंड्री डालने होंगे, और आप डालिएगा. बिकॉज मैंने तो डाले हुए कि आज किसी की हिम्मत नहीं है मुझे आके ऐसे ही पूछने की कि जस्ट आस्किंग ऑन माई पर्सनल लाइफ दैट व्हाट्स हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ एंड व्हाई आर यू नॉट गेटिंग मैरिड. बिकॉज you have to then give it back. If someone is encroaching your personal territory, साइकोलॉजिकली भी, तो आप फर्म हो जाइए उस टाइम पे एंड गिव बैक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ताकि उसको, इंसान को भी पता चले दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नो व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट. क्योंकि अनवांटेड अटेंशन भी बहुत मिलता है. सो माय अपील टू ऑल सिंगल वुमेन इज बी वेरी अलर्ट. क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, और अगर आप ये कॉल सुन रहे हैं इंडिया से, तो आप जरूर इस कॉल पे, इस पॉइंट पे फोकस करें दैट बी अलर्ट. Because you will get unwanted attention and you will get those unwanted questions. So when you are in your power, Anita, you very rightly use the word that be in your power, when you're confident, when you're guarded, you know, and when you're very sure of what you want, you will project that kind of energy, and you will be able to give back to those people who are trying to encroach your territory. And it doesn't always need to be through men. Women can also do toxic and nasty things to you. So be very guarded. खुद को जज करना पहले बंद करो. ये मेरा मैसेज है वो सारी औरतों के लिए. अगर वो किसी भी रीजन की वजह से सिंगल है, या तो उनका डिवोर्स हुआ है, या विडोहुड है, या वो सिंगल ही है, फॉर व्हाटएवर रीजंस दैट इट इज, यू नो, अपने आप को जज करना बंद करो. ये चॉइस है, आपकी गलती नहीं. काइंड विथ योरसेल्फ. And if you're still open for marriage and open for relationship, it will happen. There is no age. Right. It can happen at any time. And you will get that person. But for you to get that person, first you love yourself. And that is the only thing that is going to help you to go a long way. Like you are so right, you are so like bang on कि पहले खुद से प्यार करना सीखो, खुद को समझना सीखो, खुद को जज करना बंद करो. Because our energy, हमारी जो energy हमारे खुद के, it said that our outer world is the reflection of our inner world. अगर अंदर ही इतनी हलचल है, अंदर ही इतना सब कुछ चल रहा है, तो बाहर उसका reflection दिखेगा हमें. We will be energetically attracting all those things जो हमारे अंदर चल रहा होगा, right? And you were talking about aura healing and chakra healing and all those things. Like ये वाला साइंस हमारे यहाँ पे सालों से चला रहा है, but still that awareness is not there with everyone. कि how does this energies work on our body?
So would you like to like share a bit about that? Yes, so ये I will share with by also sharing the second challenge that I faced in my life. So जो मेरे चाचा जी थे जिनको मैं बड़े पापा एड्रेस करती थी, वो एक एथलीट रह चुके हैं. A very strong physique is what he had, a very good health is what he had enjoyed, and at the age of 61 he was diagnosed with cancer. वो कभी ड्रिंक नहीं करते थे, कभी स्मोक नहीं करते थे, रन करते थे, जिम करते थे, योगा करते थे, मतलब इट वाज द लीस्ट पॉसिबिलिटी कि उन्हें कैंसर हो जाए. तो Right. जब उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ और जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, एक काफी अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट ने ही उनका ट्रीटमेंट किया, तब मेरे दिमाग में ये सारे सवाल आए कि जब कोई नॉनवेज नहीं खाते थे, ये नहीं वो नहीं, तो फिर कैसे हो गया इनको कैंसर, मतलब क्या रीजन क्या हो सकता है. फिर तब मैंने पढ़ना शुरू किया और उसमें से मैंने काफी जो रिसर्च किया मुझे पता चला कि कई बार हम कैंसर अट्रैक्ट करते हैं साइकोलॉजिकली. जब हम अपने आप से नाराज होते हैं, जब हम अपने आप से किसी चीज से खुश नहीं होते, या कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हो, या आपको कोई गिल्ट हो, तभी भी आप कैंसर अट्रैक्ट कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई कैंसर हैपेंस. तो ये बहुत सारी चीजें थी उनके लाइफ में, कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा था, एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू सॉल्व दिस पजल. और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर हम साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ वे इन विच दैट कैन बी ऑल्सो हील्ड. डिस्क्लेमर सबके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. मेडिसिन और डॉक्टर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड कंटिन्यू टू गो टू देम. ये तो एक एडिशनल कॉम्प्लीमेंटिंग टेक्निक्स है जो आप अपने लिए यूज कर सकते हो, जिससे आपका एनर्जी ज्यादा बूस्ट हो जाए. तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहला एनकाउंटर किया विद हीलिंग मोडालिटीज, कि हीलिंग होता क्या है. एंड इट स्टार्टेड विद रेकी, then access consciousness, and then many other modalities that came my way. And I realized that we all human beings, we are energy beings. एक सोचिए 2 मिनट के लिए रिवाइंड कीजिए, जब हम पैदा होते हैं हमें पता भी नहीं होता हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, और हमें किसने पकड़ा है, डॉक्टर ने, नर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, किसने हमें पकड़ा है, हमें वो सब नहीं पता. हमें सिर्फ पता है कि ये टच सेफ टच है कि अनसेफ टच है. सिर्फ हमें उतना पता होता. हर एक बच्चा सिर्फ वो जानेगा कि सेफ टच है कि अनसेफ टच है. तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है एनर्जी से. तो हम सबसे पहले जो लैंग्वेज बात करते हैं वो है एनर्जी की लैंग्वेज. वी स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी फर्स्ट, एंड देन कम्स द वर्ड्स. सो व्हेन वी स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी, द एनर्जी इज ऑल अराउंड अस, एंड एनर्जीज कैन बी पॉजिटिव एंड एनर्जीज कैन बी टॉक्सिक. So in our daily life, the kind of stresses that we have, which sometimes exhaust us, तो वो stresses से deal करने के लिए बहुत ऐसे healing techniques है जिसका आप use कर सकते हो, और आप अपने आप को regularly heal कर सकते हो. तो ये मेरा suggestion रहेगा सबके लिए. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, क्योंकि ये मैंने मैंने भी बहुत सी बार सुना है. समटाइम्स लाइक कोविड का एग्जांपल ले लो. देयर वर सम केसेस जहां पे इंसान को बहुत सारी बीमारी है एंड देन दे गॉट कोविड आल्सो, बट दे वर आराम से कोविड से बाहर निकल गए वो लोग. एंड फ्यू पीपल हु आर फुल्ली हेल्दी, फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ प्रॉपर, सारे रिपोर्ट्स प्रॉपर, लेकिन कोविड आया एंड विद इन 15 days दे वर लाइक गॉन. So there I think that psychology played a huge role, that fear of getting affected by COVID and getting isolated, वो itself was so scary. मतलब even when I was like, जब शुरू में आया था तब यार कोविड नहीं होना चाहिए, मतलब आइसोलेशन में रहना पड़ेगा. फिर ये मतलब that psychologically took away the life, right? तो ये कितने सारे लोगों के साथ हुआ है. तो आई फील कि हम लोग सोचते हैं सिर्फ खाना पीना और ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, उससे ही हमारे सारे डिजीज होते हैं. तो इट्स लाइक वे मोर देन दैट. लाइक हमारे इमोशंस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी को लाइक हेल्दी रखने के लिए. ये वाला जो आपने बोला है ना कि कुछ नहीं खाते पीते थे, कुछ नहीं ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता. आई हैव हर्ड इट विद सो मेनी पीपल कि कभी कुछ नहीं किया है फिर भी. एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु ड्रिंक, हु ईट एंड हु डज एवरी मतलब नॉन वेज जंक सब 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 खाते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता है. सो दैट लाइक दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट? साइकोलॉजिकली जो ये हमारे अंदर इट डज क्योंकि अभी जो मैं काफी काम करती हूँ इन द एरिया ऑफ फॉरगिवनेस,
तो मैंने यही समझा है इस चीज का कि जो आप अगर किसी चीज से आप नाराज हो या गुस्सा हो या कोई चीज आपके अंदर खाए जा रही है आपको, या किसी चीज से आप सेटिस्फाइड नहीं है, एंड वो इमोशंस आपके अंदर है, उस एपिसोड को हुए सालों हो गए हैं लेकिन अभी तक आप भूल नहीं पा रहे हो, अभी भी आप उसको पकड़ के चल रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके बॉडी को इम्पैक्ट करेगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो एंड टू फॉरगिव. Here also I would like to say कि लेट गो कहना आसान होता है बट लेट गो करना मुश्किल होता है. सो एनी टिप्स फॉर दैट? ऑफ कोर्स आई विल जस्ट से कि लेट गो करने में थोड़ा टाइम लगता है, इट्स अ प्रोसेस. तो ऐसा नहीं कि स्विच ऑन और ऑफ वाला बटन है कि आपने ऑन कर लिया तो हो गया, ऑफ कर लिया तो हो गया. टाइम दीजिए. अगर आप रेडी नहीं है तो टाइम लीजिए. इफ यू वांट टू रीप्ले दैट एंटायर एपिसोड अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, डू इट. But once you have taken enough time, then start working on the process of letting go. और उसके लिए मैं highly recommend करूंगी सभी लोगों को जिनको let go करना है, to at least once look at the concept of forgiveness. It is a beautiful concept. Forgiveness हम किसी और के लिए नहीं करते, forgiveness हम अपने लिए करते हैं क्योंकि आप उस पिंजड़े में बंद हो. वो एपिसोड को हुए सालों बीत गए हैं लेकिन आप आज भी वो एपिसोड को लेके जी रहे हो. तो आप उस एपिसोड के कैदी हो, वो इंसान नहीं जिसने जो भी आपके साथ किया. तो जब आप फॉरगिव करते हो आप अपने आप को आजाद कर रहे हो, उस इंसान से उसका कोई लेना देना नहीं है. सो अंडरस्टैंड दिस दैट फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट. And when I realized this in my life, when I got into forgiveness, I was able to meet my ex. And we had a great closure. We blessed each other. आज हम कांटेक्ट में है नहीं बट हमने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है. हम एक दूसरे को सिर्फ दुआएं देते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मुझे दुआएं देते होंगे और मैं भी उन्हें दुआएं देती हूँ. सो इसका फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप पैचअप कर लो या आप उस इंसान को वापस ले लो. वो आपका चॉइस है और वो सिचुएशन का चॉइस है. बट जस्ट बिकॉज आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिकंसाइल भी कर रहे हो. बट जस्ट उस इंसान और आपके बीच में जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है. और जब वो खत्म हो जाता है लेटिंग गो बिकम्स वेरी इजी. देर इज नथिंग टू लेट गो. फिर आपको पता चलेगा लेट गो क्या कर रहे हैं. देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वेर आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड. बिकॉज जो लोग आपके लाइफ में आके आपको सबसे बिटर एक्सपीरियंसेस देके जाएंगे, भले वो फैमिली में हो, वर्क लाइफ में हो या लव लाइफ में हो, वो एक्चुअली आपके सेक्रेड फ्रेंड्स होते हैं. वो आपके भलाई के लिए आए हैं ताकि आप सुधर जाओ या आप कुछ नया सीखो या आप फाइनली स्टेप अप कर लो. तो उन्हें बस हमें थैंक यू बोलना है, लेट गो क्या करना. दैट्स माय फॉर्मूला. ऑसम. मतलब वो पूरा पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट कर दिया आपने कि इट इज एक्चुअली देयर, मतलब दिस ऑल थिंग्स हैव कम टू एक्चुअली मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, राइट? यस यस. Amazing, amazing. So how was Neha before and after this event? Oh wow, what a nice question. Before, after, I will just say, अगर मुझे इस सवाल का जवाब दो शब्दों में देना हो तो मैं कहूंगी बिफोर आई वॉज अ टेकर एंड नाउ आई एम अ गिवर. That shifted, मतलब वो इवेंट आपकी लाइफ में आपको एक गिवर बनाने के लिए आया. तो मुझे लगा ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिली है मुझे उस इवेंट से, उस डाउनफॉल से. सबसे पहला गिफ्ट तो मुझे ये मिला है ऑफ ट्रस्टिंग माय ओन सेल्फ, ऑफ नोइंग माय ओन पावर. बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि भगवान हमें काफी सारी चीजों से गिफ्टेड करके हमें धरती पे है लेकिन हम वो टैलेंट्स की कदर ही नहीं करते. टू टॉक अबाउट माई लाइफ, अर्लियर आई न्यू आई वॉज इंटेलिजेंट बट आई नेवर ऑनर्ड दैट इंटेलिजेंस. लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बट जब वो डाउनफॉल हुआ एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय आरआरआर आई रियलाइज दैट नो, God has given me some talent. Like maybe I'm good at communication, I'm good at using the knowledge to help people, I'm good at designing content. But when I'm good at all of these things, what am I doing with it? Because God expects you to do something of the talents and the gifts that God has given you. So if you're not channelizing it correctly, you're disrespecting it. So that shifted my perspective and I said कि नहीं, मुझे तो ये अपने सारे टैलेंट्स यूज करने हैं, जो आप हिंदी में हम कहते हैं सदुपयोग करना, उसको अच्छे से यूज करो. So that shifted. Another thing that shifted big time, what it shifted was
It was a very I, me, myself approach. Mm. My dream, my thing. And from I, it turned to what can I give? And this I would like to highlight not just in my relationships. This is also in my career. And this is for everyone. Whenever we want to have a career, a good career, भले वो job हो या business हो, हम सबसे पहले कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे Mm. कितनी सैलरी मिल रही है, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। आप जरूर देखिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे हमारे घर चलते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, जरूर देखो। पर इसके साथ साथ ये भी देखो कि आप क्या दे रहे हो, Mm. आप क्या टैलेंट्स ऑफर कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके क्लाइंट्स को, जो अगर आपका बिजनेस है तो आप क्या बेस्ट क्वालिटी सर्विस उनको दे रहे हो। तो जब आपका फोकस ज्यादा इस पे होगा कि हम क्या दे रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है उसकी टेंशन भगवान कर लेगा। उस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आपके पास आ जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू गिव। सो दैट इज अ That बिग। is so powerful. That's so powerful. Like ये तो ये तो like हमारे इवन कल्चर में भी यही बताया जाता है कि give more of what you want. आपको जो चाहिए वो तो सबसे ज्यादा दो. यस, So good. Like that event came you to shift from I me myself to like the giver यस, soul. यस। Amazing, amazing. And इतना सारा सब कुछ आप करते हो, so many things you are doing. So how do you like make a balance, like work life balance कैसे करते हो आप? हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, बिकॉज एक और चीज ऐसी होती है कि जब आप मैरिड नहीं होते हो तो लोगों को लगता है आपको कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा काम ले सकते हो। और कभी कभी आप भी अपने आप को बहुत ज्यादा काम के साथ प्रेशराइज कर लेते हो। सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि वर्क लाइफ बैलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस करती हूँ वो ये है, वर्क लाइफ बैलेंस वीक में कौन सा दिन है उसके बेसिस पे नहीं होता। अगर आपका काम सैटरडे संडे का है तो आप सैटरडे संडे काम जरूर कीजिए। आई विल नॉट से कि वर्क 5 days एंड देन 2 days टेक रेस्ट, डजंट रियली मेक सेंस। बट आइडेंटिफाई फ्रॉम द 7 days which is that one day which you are going to rest out for yourself. That can be one way of doing it. The second way of doing it, maybe not, you don't have the privilege to even take one day off because of the kind of work that you're doing. That's fine, then gift yourself 1 hour every day. 1 hour every. 1 hour every day. And you can break it 30 minutes in the morning, 30 minutes in the night. You can break it. You can break it 20, 20, 20, 20 minutes. You can just play around with it. You can have your equations, but give that time to yourself. Identify something that you love to do, something that brings you joy. Like personally, I make a joy list. All the things that gives me joy. Like walking on the beach barefoot gives me a lot of joy. And I go and I do that whenever I get time. So make a joy list and do things that really give you that joy, that pure joy, because that is going to fortify your creativity. जब आप बोल रहे थे कि 1 घंटा अपने आप को दो, like usually I have like seen 1 घंटा, it's too much, मेरे पास टाइम नहीं घंटे का। एंड यू मस्ट बी एबल टू रेजोनेट इट, क्योंकि आप भी इतने सारे मल्टीटास्किंग मल्टीपल चीजें करते हो। आपका खुद का बिजनेस है, आपका लाइफ कोचिंग का है, आपका आप जो एक्स्ट्रा चीजें करते हो, जो जॉय ऑफ गिविंग वगैरह, तो वो 1 घंटा कैसे निकालते हो ये भी बता दो। एनर्जी जोन्स पे फोकस कीजिए। अब दिन में ऐसे जरूर कुछ एनर्जी जोन्स होंगे जहां पे आपकी एनर्जी ऑल टाइम हाई पे होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने अपने बारे में बात करूंगी। मैं एक अर्ली राइजर हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है, और उस टाइम पे मेरी एनर्जी ऑल टाइम हाई पे होती है। तो वो जो सुबह का आधा घंटा होता है जहाँ पे मैं अपने चैंट्स करती हूँ या मेडिटेट करती हूँ या विजन वर्क करती हूँ या जो भी मैं अपने लिए करती हूँ, वो आधा घंटा मेरे लिए होता है। और वो बहुत ही प्रेशियस क्यों होता है, बिकॉज उस टाइम पे मेरी एनर्जी ऑल टाइम हाई पे होती है। और वो एनर्जी मुझे यूज करना बहुत अच्छा लगता है। सो उस टाइम पे नो फोन्स, नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम, नो चेकिंग ऑन फैमिली कि उनको क्या चाहिए। दैट हाफ एन आवर इज योर्स, सो दैट इज व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ। एंड बिफोर गोइंग टू बेड I take again my half an hour. It may sound very cliche, but it is something that is very special to me. That half an hour is mine because I'm closing my day.
And I close my day again with a lot of gratitude and many other exercises that I do. But more than what I do, the point is when I do. So for me, I have identified that these are my energy zones. So my request for everyone is that you identify your energy zones. हो सकता है कि you are not an early riser, you are a night owl. You like to stay up till late in the night. So maybe 2 a.m. is your energy, high energy zone. Or afternoon when everyone is not around, you have your time. That is when your energy zone is. So focus on your high energy zones. तो उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपकी एनर्जीज काफी अच्छी होती है और आप अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सरसाइज कर पाते हैं. And that is when you start doing any activities in your energy zones, it will give you more joy. So that's my suggestion. Thank you for sharing that. कि and do you think you have the liberty, like वो आधा घंटा और ये आधा घंटा आपके पास like है आपको खुद को देने के लिए? अगर आप खुद को नहीं दे सकते हैं कुछ, तो आप किसी और को क्या देंगे? Oh wow, that is like bang on. ये वाला एकदम like eye opening moment है कि आप खुद को नहीं दे सकते तो दूसरों को क्या दोगे? तो मेरा यही फंडा है कि पहले ना फिल योर कप. सीधी सी बात है, ये अभी ग्लास है, ये थोड़ा सा ही भरा हुआ है. अभी मैं इसको पोर करूंगी तो बहुत जल्दी ये खाली हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर पानी नहीं भरूंगी तो फिर मैं पोर क्या करूंगी? Right. तो कई बार हम ऐसा हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम बहुत वी आर जस्ट गिविंग बट वी आर नॉट फिलिंग आवर कप. एंड समटाइम्स वी आर ओवर फिलिंग. अगर मैंने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया बैक टू बैक, अगर मैंने दिया ही नहीं तो ये पानी गिर जाएगा. दोनों चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप ये कह रहे हो कि आई विल नॉट गिव माई सेल्फ टाइम, गुड, डोंट गिव योर सेल्फ टाइम. देन योर बॉडी विल गिव यू अ डिजीज, your mind will give you a stress. So if you're ready for all of that, then don't give yourself time. Awesome. Beautifully you have put it. For everyone who says कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब का, नेहा के पास होगा, अनीता के पास होगा, हमारी तो लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं, हमें नहीं मिलता है टाइम. So here, yeah, you are like bang on. कि फिर दूसरों को क्या दोगे? Correct. Awesome. And any like concluding golden nuggets, like sum up करना चाहोगे आप कि this you take away from me, this I have learned from my life, something? I think मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि लाइफ एक करिकुलम है ग्रोथ का. लाइफ हमें हर चीज, हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सिखा रही है. बस हमें ओपन रखना है हमारी आंखें और हमें क्या लाइफ सिखा रही है वो देखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट. One of the key things that I have learned from my experiences, and I would urge people to do it, is believe in yourself and trust yourself. When you trust yourself, others will trust you. Trust your choices, trust your decisions, and be kind to yourself time and again. Very important. And when you're asking for something, also have a look of to what are you giving. So your asking and giving ratio should be balanced. Don't ask a lot and don't give a lot. Balance it out, but do give. And as it is said in our Hindu rituals that, always give more than what is asked for. That is what we expect God, right? We want God to give us a lot of things, like ye bhi chahiye, ye bhi chahiye, ye bhi chahiye. So it's better that we also give a lot of things, our time, our talent, our patience, our understanding, our wisdom, our money to whoever is requiring whatever it is, So balance out your asking and giving. And last but not the least, have a joy list. Have a joy list. Enjoy. लाइफ इज टू एंजॉय. इतना सीरियसली मत लो लाइफ को. वो सीरियस लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सारी चीजें हैं. जस्ट एंजॉय योर लाइफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतना लोड मत लो, चिल करो. Yeah, totally agree. And I am a firm believer of this कि ना लाइफ को एंजॉय करने के मोमेंट्स छोड़ने ही नहीं चाहिए. Even if you have, मतलब मेरा ये फॉर्मूला है कि even if I have to drop 1 or 2 goals of mine ना, मुझे चलेगा, बट मुझे जीना है लाइफ को. बिकॉज मुझे डेथ बेड पे ये रिग्रेट नहीं करना है, अरे मैंने को वो करना था लेकिन मेरा हो नहीं पाया. करेक्ट है. So thank you for sharing that beautiful thing कि start living your life, have those moments of
moments for yourself, to spend time with yourself, because that will actually help us to recharge our body, mind and soul, right? Yes, yes, absolutely. So trust yourself, give more than what you're asking for. And third is enjoy your life. Create your joy list and just enjoy every moment. That's all. Awesome. चाहे फिर आप सिंगल हो, मैरिड हो, मदर हो, जो भी कुछ हो. भी हो, मैरिटल स्टेटस ना सिर्फ फॉर्म पे होता है जहाँ पे आपको टिक करना होता है. तो अ बिग शाउट आउट टू ऑल द सिंगल लेडीज हु आर लिसनिंग टू दिस कॉल. अरे जियो अपना सिंगलहुड. बी बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर द चॉइसेस दैट यू हैव मेड. और अगर शादी करनी है तो कर भी लो, लेकिन अपने इच्छा से करो, अपने चॉइस से करो, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो. और उस चीज के लिए अपने आप को जज मत करो. भले सोसाइटी करे, उस सोसाइटी को अपना काम करने दो, आप अपना काम करें. दैट्स इट. So bang on. मतलब लास्ट में आपने जो कंक्लूड किया है, आई थिंक दैट विल बी हार्ट टचिंग. सच अ गाइस, शी इज नॉट स्पीकिंग जस्ट कुछ नॉलेज, कुछ बुक्स वहां से नहीं बोल रही है. वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही है. सो प्लीज प्लीज रीच आउट टू हर अगर आपको उनसे और फर्दर बात करनी है. शी विल बी लाइक, she is such a like helping soul ना, कि वो आप कभी भी उनसे बात करोगे उनके डीएम में. आई विल बी पुटिंग हर सोशल मीडिया लिंक्स, यू कैन कनेक्ट विद हर. गेट गेट अगर आप सीरियसली अगर स्टक हो, लाइक शी सेड कि मैंने खुद ने इतने सारे लाइक लोगों को कंसल्ट किया. व्हेन आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय माई सेल्फ, आई टुक हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प. तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से कि आप भी है ना, अगर कहीं पे भी लग रहा है कि आप स्टक हो, तो प्लीज गो रीच पीपल हुम यू वाइब विद. अगर आपको नेहा वाइब कर रही है तो आप नेहा से कनेक्ट करो. अगर आपको कोई भी वाइब कर, बेसिकली get out of that stuck zone. That is very dangerous. आपको move forward होना है लाइफ में, तो start taking help from the people who are like experienced or who are like professionals. It will really help you tap into your true power and your true like जो purpose होता है ना आपका लाइफ में, उसके तरफ आपको वो push करेगा. Right, नेहा? Absolutely, absolutely. Very true. Yeah. And So thank you so much, Anita, for giving me this opportunity. And आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और मैं अपनी बात रख पाई. आपके मीडियम के थ्रू वो सारी औरतों के लिए जो शायद ये कॉल सुनेंगी, एंड ऑफ कोर्स टू मेन आल्सो, बट ऑफ कोर्स माय इंक्लिनेशन विल बी लिटिल मोर टुवर्ड्स वुमेन who would be listening to this call. So thank you. Thank you so much, Neha, for sharing your personal experience and helping all the women out there. It was really like a privilege कि आप यहाँ पर आए, आपने टाइम निकाला, and I'm really like glad कि ये मैसेज लोगों तक जाएगा. And even if one soul get inspired, ना, my job is done. I think I'll Thank you try for so this. much. Thank you. Thank you guys. Don't forget to subscribe my channel, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज आते रहेंगे. 50 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, एंड मोर टू कम. एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो सिंगल है या सिंगल रहना चाहते हैं, या उनको उनको लाइक पसंद है सिंगल रहना, या फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, they want to stay single but struggle कर रहे हैं. तो please share it. I want this message to reach as many women who are facing this, क्योंकि शायद नेहा कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर कर दे, and you become the medium of it. So do that for me, and the other soul, you might get blessings in return. And we will see you with some other guest at some other time. Bye for now. Thank you so much, Neha. Thank you.